Hello everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 20th February 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो डेट है 20th February, ये क्या हम मनाते हैं ये भी देखते हैं because end of the year जो आप dates याद रखने के लिए बहुत मुश्किल होता है, right? So जैसे जैसे dates important कुछ events होते हैं, we'll discuss this, okay? So that when you see your GK mantra जब आप monthly compilations करते हो, that will be very easy for you. So आज का जो date है 20th February is celebrated as World Day of Social Justice. Okay, UN इसको मनाती है as World Day of Social Justice. Now this is a World Day. What about India? India में कुछ specific event हुआ है आज के दिन? Yes. यहाँ पे दो states है अरुणाचल प्रदेश and मिजोरम. इनको statehood मिला है. That means they were union territories. They were transformed into states on the 20th February 1987. So again, they have their statehoods on these 2 days. Now let's understand some important facts about these 2 states because questions ऐसे भी आ सकते हैं. Mainly अगर आप दूसरे भी exams देते हो, not just CLAT, ALET या कुछ और competitive exams देते हो जैसे SLAT, you can be asked such of these questions and these facts. So let's see. मिजोरम के बारे में पहले देखते हैं. Who celebrates the statehood? So मिजोरम का जो word है, मी stands for people, Zo stands for hills and Ram stands for country. तो इसीलिए इसको कहते हैं country of people living in the hills. ये जो स्टेट है इट इज द सेकेंड लीस्ट पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन के हिसाब से इट इज वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स. पहला लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इज सिक्किम, उसके बाद आता है मिजोरम. साइज की बात करें इट इज द 5th स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया. लेकिन अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें ये जो स्टेट है 91% इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट. क्लियर? सो दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर. अगर आप कंपेयर करते हो उसके ज्योग्राफिकल एरिया, ओके, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हो तो इस स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है. कौन सा? मेनली यू कैन फाइंड बैम्बू इज द मोस्ट कॉमन. ओके, इट्स द 44% ऑफ द स्टेट इज बैम्बू बेरिंग. और ये जो मिजोरम है इज कंसिडर्ड एज अ पेनिनसुला स्टेट बिकॉज यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी होते हैं. नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हिच आर द स्टेट्स और व्हिच आर द कंट्रीज दैट शेयर अ बॉर्डर विद मिजोरम. आप ये मुझे बताएंगे कौन से यहाँ पे कंट्रीज शेयर करते हैं बॉर्डर मिजोरम के साथ. And most important thing, there's something called as the Blue Mountain, which is Phangpui Tlang. Okay, इसको Blue Mountain कहते हैं. It is in the southernmost part of the state. It is one of the highest peaks of Mizoram. It's the highest peak of Mizoram. तो ये important facts हमने मिजोरम के बारे में देखा है. Let's proceed to the next one, which is Arunachal Pradesh, also celebrating a statehood. Arunachal Pradesh initially it is called as NEFA, यानी कि North East Frontier Agency. ये यूनियन टेरिटरी हुआ करता था and later on 20th February 1987 it became a state, a full-fledged state. Now it is known as land of the dawnlit sun because यहाँ पे उसकी geographical position की वजह से we know it lies on the east. तो sun पहले यहाँ पे sunlight जो है इंडिया में इस state पे पहली बार पड़ता है. Okay, पहला state जो पड़ता है यहाँ पे sunlight, this is basically Arunachal Pradesh. Apart from that there are 26 major tribes, 100 sub-tribes, 30 languages यहाँ पे. So बहुत सारी tribal languages यहाँ पे बोले जाते हैं. International borders यहाँ पे मैंने mention किया है China, Bhutan and Myanmar. So these are the countries that share border with Arunachal Pradesh. Okay, so the northeast states has 8 wildlife sanctuaries, 1 orchid sanctuary and 2 national parks. So this is something about Arunachal Pradesh. तो हमने important facts समझे हैं. Now let's understand also some of the facts that I asked you yesterday. आपको मैंने कुछ questions पूछे थे कल की वीडियो में, तो आइए देखते हैं किसने इसका सही जवाब दिया है. So here we have 2 of them who have answered this, Megha and Gargi. Very good. Great that you are answering. ऐसे ही आप आंसर करते रहो. And this is emerging the other students as well who are watching the videos. Please watch and please comment with the questions that I ask you because this will really help in your preparation, right? तो यहाँ पे मैंने कैसे questions पूछे थे? Firstly, I asked you कि लॉ मिनिस्टर करंटली कौन है और इनका नाम, yes that's correct, अर्जुना राम मेघवाल, and both of you all have answered it correctly. Now remember one important aspect, हमने लॉ मिनिस्टर देखा था because we were discussing of चीफ इलेक्शन कमीशन. याद है चीफ इलेक्शन कमीशन नए अपॉइंट हुए हैं ज्ञानेश कुमार.
तो ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट करने के लिए एक पूरा अपॉइंटमेंट प्रोसेस है। पहला एक सर्च कमेटी डिसाइड करती है और इस सर्च कमेटी 5 नेम्स देती है। ये सर्च कमेटी के हेड कौन है? इस सर्च कमेटी के हेड है लॉ मिनिस्टर यानी अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, सर्च कमेटी के बाद ये 5 नाम जो वो सर्च करके देती है वो देती है सिलेक्शन कमेटी को। सिलेक्शन कमेटी फिर सिलेक्ट करती है कौन में से इसमें से किसको हम बनाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर। Now remember, सिलेक्शन कमेटी में हमने डिस्कस किया था कौन दूसरे हैं, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एंड फाइनली जब वो नाम सिलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। सो ऑल ऑफ दिस सिलेक्शन प्रोसेस वी हैड सीन येस्टरडे। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है प्लीज वॉच दैट वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो आस्क्ड यू अबाउट द फॉरेस्ट कवर। वी डिस्कस्ड अबाउट ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी, एक रिपोर्ट के बारे में देखा था, बाय एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट यार। सो इसमें मैंने आपको पूछा था फॉरेस्ट कवर है। सो नाउ रीसेंट डेटा, ये बहुत रिसेंटली डेटा आया है 2024 में, दिसंबर 2024 में ये डेटा आया था। सो यहाँ पे कुछ हमको अपडेट करना है हमारा पास्ट इंफॉर्मेशन। रिमेंबर, ट्री कवर की बात करें, वी डू बोथ ट्री एंड फॉरेस्ट कवर, ठीक है। सो ट्री कवर की बात करें, वी हैव अबाउट 3.41%. Okay, that's correct, 3.41%. And if you talk about with regard to forest cover, it is 21.76. Okay, तो आप अगर add करते हो, you get about 25.17. 25.17, सो टोटल है 21.17। और अगर हम ट्री कवर की बात करते हैं 3.41, फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं 21.76, और हमारा टारगेट है कि ये 25 नहीं, ये 33% होना चाहिए बाय 2030। बाय 2030 कितना होना चाहिए? 33%. So this is all that we have to remember in the questions that I asked today. Please keep commenting so you also can get the major out of it. Now let's proceed to the first article of the day. पहला आर्टिकल हम देखते हैं कि रिसेंटली दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे, राइट? इलेक्शंस हुए थे एंड वी नो द मेजॉरिटी पार्टी यहाँ पे मिली है, बीजेपी को वोट्स मिली है। तो बीजेपी यहाँ पे उन्होंने अपने एक लीडर को सिलेक्ट किया है एज द चीफ मिनिस्टर। तो किसको सिलेक्ट किया है एज दिल्ली चीफ मिनिस्टर? इट इज रेखा गुप्ता, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट शी इज एवर बीन एन एमएलए। तो पहली बार ये एमएलए बनी है एंड शी इज ऑल्सो गॉट दिस पोस्ट एज अ चीफ मिनिस्टर। नाउ अगेन अ क्वेश्चन टू यू, बिकॉज यहाँ पे महिला बनी है, तो कौन है पहली महिला चीफ मिनिस्टर of India? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। Who is the first woman CM of India is what you are going to tell me in the comment section. Of course, now we also have Mamata Banerjee, who's the chief minister, right, of West Bengal. तो यहाँ पे भी हम देखते हैं a woman chief minister that will be in New Delhi. तो यहाँ पे उनका oath ceremony है, सुबह 11 बजे हुआ था. So this is with regard to this, and she is the 4th woman CM of in the capital. She's the 4th woman CM of the capital. Okay, so this is all about this particular article. ये one liner में आपको पूछा जा सकता है. Let's proceed to the next article then. अगला article है with regard to building resilient telecom infrastructure. Okay, let's see what are the important facts that we have to understand from this article. तो अगर हम telecom sector की बात करते हैं, this is the most fragile, vulnerable sector. Okay, especially during the time of disasters. तो जब भी डिजास्टर्स की बात करते हैं, जब भी डिजास्टर या कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, मान लो कोई फ्लड आता है या कोई साइक्लोन्स आते हैं, तो ये जो सेक्टर है ये अफेक्ट होता है। कैसे अफेक्ट होता है? वी फाइंड दैट जो टेलीकम्युनिकेशन लाइंस होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, यहाँ पे आप देखते हो जैसे वायर्स और केबल्स होते हैं, ये डिस्टर्ब हो सकते हैं, राइट? या अगर आपके जो टावर्स होते हैं, जो हाई टावर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द हाई विंड्स ये टावर्स अफेक्ट हो सकते हैं, गिर सकते हैं, राइट? तो ये जो इंसिडेंट है मैं आपको बता सकती हूँ कि इवन आई वाज फेसिंग दिस समथिंग लाइक दिस व्हेन you know the previous day was we had heavy rains. तो यहाँ पे जो नेक्स्ट डे जो मुझे एकदम भी सिग्नल नहीं मिल रहा था. Okay, so this talks about yes, जो फ्रेजाइल इतना ये सिस्टम है, वाल्नरेबल ये इतना सेक्टर है कि बहुत लोगों को अफेक्ट करता है, एज वेल एज इवन बिजनेसेस को अफेक्ट करेगा. Now coming to understanding about why are we discussing all of this, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है
कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, एक यहाँ पे ग्रुपिंग है जिसका नाम है CDRI, ओके, CDRI पूरा इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, विच इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ दिस इज अ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी बहुत सारी कंट्रीज इसका पार्ट है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज इंडिया ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। सो इंडिया इज द वन दैट हैज लॉन्च्ड इट, आवर ओन वेरी प्राइम मिनिस्टर लॉन्च दिस इन द ईयर 2019। तो इसके अभी 5-6 साल पूरे हुए हैं, एंड दिस पर्टिकुलर बॉडी इन्होंने एक रिपोर्ट दिया है, ठीक है। सो व्हाट इज वाई इज इट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन्होंने रिपोर्ट दिया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है विद रिगार्ड टू टेलीकॉम नेटवर्क प्रिपेयर्डनेस, स्पेशली इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर्स, कि हमको क्या क्या करना चाहिए, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दिस टेलीकॉम सेक्टर, ये सब इस रिपोर्ट में बताया है। So when we discuss about this report, we understand that yes, it is important, mainly because as I said कि यहाँ पे ये quickly disrupt. Now कभी भी disaster होता है, you need to communicate, you need to coordinate with various departments, with various government agencies, है ना, आपको grassroots level तक information पहुंचाना है। तो अगर ये network ही नहीं होगा, आप कैसे information pass on कर सकते हो? So that will be a problem in the time of disasters. So that is why this has to be a very crucial sector, right? Because यहाँ पे loss of lives हो सकते हैं, property हो सकता है, तो पहला यहाँ पे securing this particular sector to give in information, right? That is why you need this particular sector properly working. फर्दर ये आर्टिकल में हम देखते हैं हाउ व्हाट एल्स अदर रिकमेंडेशंस गिवन। तो यहाँ पे आर्टिकल में या जो रिपोर्ट है रिकमेंडेशंस भी दिया गया है कि जैसे आपको आपका जो टेलीकॉम नेटवर्क है, सेक्टर है, इसको रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू मेक इट क्लाइमेट रेजिलिएंट, यानी कि अगर कोई डिजास्टर होता भी है, it should be able to withstand that particular disaster. So make your sector resilient. इसके अलावा they are also talking about dig once policy. Now what do you mean by this dig once policy? समझते हैं। Now when we have बहुत सारी कम्युनिकेशन लाइंस, वी हैव गैस पाइपलाइंस, वी हैव वाटर पाइपलाइंस, है ना, तो ये बहुत सारे पाइपलाइंस हम क्या करते हैं, मोस्टली अंडरग्राउंड होता है, राइट? यू मस्ट हैव नोटिस दिस अंडरग्राउंड, इवन दीज टेलीकॉम लाइंस, गैस लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी सब नीचे होते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस यूजुअली, जब आप एक लाइन बनाते हो तो आप डिग करते हो, सो यू क्रिएट a water line, again after some years you probably dig again and you have another new line coming, maybe gas line. तो ऐसे करके जब आप बार बार dig करते हो, this fragile infrastructure can get affected, क्योंकि आप बार बार उसको digging करते हो, तो इससे क्या होता है, ये disrupt होता है, ये working जो है इसका affect होता है। So that is why the article says कि यहाँ पे dig once policy होना चाहिए, कि जो भी आपका building करते हो, आप underground infrastructure, cable work करते हो, गैस सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक्स, है ना, तो जो भी आप करते हो ये एक ही बार में ऐसा प्लानिंग करना चाहिए कि आप एक ही बार इसको डिग करते हो। सो दीज आर सम रिकमेंडेशंस दैट आर गिवन। सेकेंडली द नेक्स्ट रिकमेंडेशंस आल्सो विद रिगार्ड टू बैकअप्स, ठीक है, बैकअप होना चाहिए इन इवेंट्स लाइक हरिकेन्स एंड साइक्लोन्स, राइट, जहां पे बहुत तेजी से एंड दोस कोस्टल रीजन्स जहां पे बहुत अफेक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ डिजास्टर्स, तो यहाँ पे बैकअप सप्लाई होना चाहिए विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर, ताकि कम्युनिकेशन करने के लिए आसानी हो। सो दीज आर सम recommendations given by this particular body, as well as why it is important is also what is mentioned in this report. अभी हम क्विकली देखते हैं इस बॉडी के बारे में, बिकॉज ऐसे फैक्ट्स आपको पूछा जा सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने कहा, इट्स अ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे मेंबर्स हैं इसके, इस ग्रुपिंग के। फॉर एग्जांपल नेशनल गवर्नमेंट्स भी है, यूएन एजेंसीज भी हैं, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स भी है, एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, सभी ये साथ में आके यहाँ पे एम करते हैं ताकि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेजिलिएंट हो, वो डिजास्टर से अफेक्टेड ना हो, राइट? एंड जो क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क होते हैं, राइट, इंश्योरिंग की ऑल्सो वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
किसने ये लॉन्च किया था, कौन से कंट्री ने? इट इज आवर वेरी ओन कंट्री इंडिया हु लॉन्च दिस इन यूएन क्लाइमेट एक्शन, जो न्यूयॉर्क में हुआ था 2019 में। सो इन 2019 यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क में हुआ था, उसी में हमने अनाउंस किया था ये CDRI। सो इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2019। Okay, now where is the secretariat of this particular organization? इंडिया ने अनाउंस किया तो इंडिया में ही है ये, that is in New Delhi. Presently there are about 31 countries, 6 organizations and 2 private sector organizations as well. ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा CDRI के बारे में। Let's proceed to the next article. Now अगला आर्टिकल हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आइए समझते हैं what exactly this article talks about. So here we have the Chief Minister of Tamil Nadu, who is M.K. Stalin. Okay, so he proclaimed that Iron Age जो है ये तमिल सॉइल में आया, ओके, एंड ये जो डेट है इसका इज गिवन एट अबाउट 4th millennium BCE. सो टॉकिंग अबाउट दिस आयरन एज, आयरन एज क्या होता है पहले इसका थोड़ा बेसिक समझते हैं. सो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, वी नो द अर्लीस्ट इज स्टोन एज, है ना, हम हिस्ट्री स्टोन एज से स्टार्ट करते हैं. Now again, before I continue with this topic, I would like to also mention it to you. Normally जो हम ancient history की बात करते हैं, CLAT portion में directly तो पूछा नहीं जाता है, but अगर आप दूसरे exams देते हैं, then this kind of information can be asked. ठीक है, so specifically अगर हम देखें, modern history is more asked in your CLAT exam, but ancient history is that topic that has not been asked yet. But दूसरे exam में जरूर पूछते हैं. So coming back to this, Stone Age की बात करें, Stone Age, this is the earliest age that we talk about, where man used stone, right? इसके अलावा हम देखते हैं, we also talk about the Bronze Age. Bronze Age में क्या हुआ? Where the people used bronze, metals का उनको अभी knowledge हुआ. तो Bronze Age is commonly we talk about the Harappa civilization, या अगर हम IVC, Indus Valley civilization की बात करें, where the man used bronze as the first metal. इसके अलावा हम देखते हैं the Copper Stone Age as well, that was also there during this period. Okay, Copper Stone Age. So Copper Stone Age है, इसी के टाइम पे है Copper Stone Age, जिसको हम चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं, जो स्टोन एंड कॉपर दोनों का इस्तेमाल करते थे. The man used to use that. And finally हम देखते हैं the Iron Age. Okay, now Iron Age is where man first started using iron. तो अगर हम देखते हैं आयरन एज की बात करें, वी ऑलवेज अर्लियर वी यूज्ड टू से कि अराउंड 500 BC, ठीक है, इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था आयरन एज. बट अभी क्या है, रीसेंट डेटा हमारे पास आया है बिकॉज ऑफ एक्सकवेशंस कि आयरन एज जो है पहले से स्टार्ट हुआ है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस होल आर्टिकल. जो हमारा प्रीवियस रिसर्च है आयरन की बारे में बात करें, इट वाज अर्लियर सेड दैट 700 या 600 BC से स्टार्ट हुआ. सम बुक्स ऑल्सो से 500. सो दिस इज ऑल बाय डेटिंग ऑफ द कार्बन, जिसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग करके हमको ये पता चला है कि कब इसका ईयर है. बट लेटर फाइंडिंग्स, लेटर रिसर्च हमको ये बताता है दैट इट कुड बी इवन 16th century BC, यानी ये और भी पहले जा सकता है. फर्दर उत्तर प्रदेश में भी हमने कुछ एक्सकवेशंस किए हैं विच टॉक्स अबाउट आयरन स्मेल्टिंग. आयरन का जो कारीगर है स्मेल्टिंग करते, दिस ऑल ऑफ दिस हैज बीन फाउंड बाय द 13th century. एंड वी ऑल्सो हैव सम साइट्स जैसे कि राजा नला का टीला, मल्हर एंड दादूपुर, यहाँ पे बहुत सारा आयरन प्रोडक्शन, लार्ज स्केल आयरन प्रोडक्शन भी मिला है. सो व्हाट डज दिस टेल? दिस सेज कि हमारे पास जो हमारा पास डेटा है, पहले हम मानते थे कि इट वाज वेरी रीसेंट अबाउट 700-600 BC, लेकिन अभी हमारे पास जो रीसेंट एक्सकवेशंस किए हैं, इट गोज बैक टू 16th century, इट गोज बैक टू 13th century, राइट. तमिलनाडु की बात करें, बिकॉज आर्टिकल आज का जो बताता है तमिलनाडु की स्पेशली बात करता है, जहां पे ये कहता है कि आयरन एज बिगैन इन तमिल सॉइल. इनफैक्ट कुछ दिन पहले इट वाज आल्सो आई थिंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर, एक आर्टिकल आया था कि अगेन एक्टिविस्ट फ्रॉम तमिलनाडु आर सेइंग कि जो हरप्पन का स्क्रिप्ट है, राइट, हरप्पा का जो स्क्रिप्ट है अभी तक वो डिसाइफर नहीं हुआ है. यहाँ पे बोला है कि हम आपको एक प्राइज मनी देंगे इफ यू आर एबल टू डिसाइफर, बिकॉज इट इज सेइंग कि कुछ सिमिलैरिटी है द्रविडियन स्क्रिप्ट के साथ. ओके, कुछ सिमिलैरिटी यहाँ पे वो पाते हैं विद रिगार्ड टू द हरप्पा स्क्रिप्ट, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको डिसाइफर कर पाते हो, वी विल इंश्योर यू गेट अ prize money. Now why are they doing that? The reason is to show
with regard to how glorious your history is, how glorious your past is, to talk about this civilization कि ये हमारे end से, हमारे से start हुआ है. That is why we have politicians claiming all of this. But coming back to this, we talk about based on facts, है ना. तो facts की बात करें, यहाँ पे तमिलनाडु में हमको findings कुछ मिले हैं, जैसे कि महिला दंपराई which is कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में है. तो यहाँ पे हमको एक Iron Age का एविडेंस मिला है backing to 4200 years ago. ठीक है, तो that is somewhat 3rd millennium BC. तो यहाँ पे हमको कुछ डेटा मिलता है कि we have found some excavations even in Tamil Nadu. न्यू रिपोर्ट ये भी कहता है कुछ साइट्स है सिवागलाई, आदिचनल्लरू एंड किल्लामंदी, ओके, अगेन महिला दंपराई, यहाँ पे कुछ यूजेज हुआ है आयरन का. सो दीज साइट्स आर ऑल्सो मेंशन. सो अगेन फैक्ट्स फॉर यू दैट कहाँ पे यहाँ पे साइट्स मिले हैं, आयरन का यहाँ पे यूज हुआ है. एंड ऑल ऑफ दिस इज अंडरस्टूड बाय वेरियस रेडियोमेट्रिक कार्बन डेटिंग विच टॉक्स अबाउट कि तमिलनाडु में यहाँ पे आयरन यूज स्टार्ट हुआ था बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 4th millennium, वेयर अर्लियर इट वॉज नॉट अंडरस्टूड. पहले यहाँ पे वी हैड नॉट गॉट एनी एविडेंसेस, बट now because of these evidences we have seen. Further there was also limited copper availability. जैसे मैंने बताया था copper was mainly used, but because there was not much copper in South India, they were relying more on iron. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा है with regard to the Iron Age on Indian soil where it started from Tamil Nadu. कौन से sites यहाँ पे mention किए हैं, मैंने आपको यहाँ पे एक list down किया है. So you can just list down, read about this one rather than going for the whole article given in the Hindu. Let's proceed to the next article then. अगला जो आर्टिकल है इज टॉकिंग, इट्स गिवन इन द इंडियन एक्सप्रेस विच टॉक्स अबाउट इज द लॉ एनक्रोचिंग ऑन राइट्स, हाउ द लेबर एक्टिविस्ट केस लेड टू सुप्रीम कोर्ट टेस्ट. तो अभी हम एक डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू सी सम बैकग्राउंड ऑल्सो with regard to laws and how did Supreme Court bring about a judgment in that case. उसके लिए you need to know the background. तो बैकग्राउंड ये है कि August 10th को 1942, ओके, सो दिस वाज ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम, कॉलोनियल टाइम में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ मेंबर्स, कुछ कमिटीज को अनलॉफुली अरेस्ट किया था. ठीक है, किसको अरेस्ट किया था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को, 4 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, बिकॉज ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट. तो इन्होंने इनको अनलॉफुल एसोसिएशंस डिक्लेयर किया था अंडर विच एक्ट, अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, जिसके कारण दे कैन अरेस्ट एनी लॉफुल एसोसिएशंस व्हिच दे क्लेम टू बी अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट. जो भी वो क्लेम करते हैं अनलॉफुल है, उनको वो गिरफ्तार कर सकते हैं. Now this also happened in 1950. चलो 42 की बात करें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे, but if you talk about in the time of आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 की बात करें, मार्च में भी यहाँ ये लॉ इन्वोक हुआ था अगेंस्ट होम, अगेंस्ट द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, कि ये एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है, अनलॉफुल एसोसिएशन है और ये एक डेंजर है टू पब्लिक पीस. सो दैट इज व्हाई अगेन दिस वाज इन्वोक्ड. उस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स ने किया, लेकिन 1950 में तो इंडिपेंडेंट इंडिया था. सो इसके लिए वी सी दैट मेनी सच activists came forward and protested against this particular law कि ये कानून जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अभी इनवैलिड है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे है. So you should not have this act so far to be done now. So who is this activist that we talk about? He is V.G. Rao. ठीक है, तो यहाँ पे इनका पूरा नाम दिया गया है वोम्बटकेरे गुरुनंदन राव. तो इन्होंने क्या किया, ही वॉज अ ट्रेड यूनियनिस्ट, ही वॉज अ लॉयर. इन्होंने चैलेंज किया ये जो बैन किया गया था मद्रास के जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में, ही asked for this law to be banned, okay, as well as he went to the Supreme Court also with regard to this. तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला. 1952 में 2 साल के बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज बेंच ने ये जो लॉ है क्रिमिनल लॉ वाला, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया. सो इट स्ट्रक डाउन द लॉ, इट सेड दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द जजमेंट? द जजमेंट, हम केस का नाम है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वीजी राव. क्लियर? सो इट फर्स्ट
अपार्ट फ्रॉम डिक्लेयरिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इन्होंने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस भी दिए, ओके, whether a law is excessively restricting fundamental rights or not, right? तो ये चेक करने के लिए कि क्या ये लॉ सही है या ये फंडामेंटल राइट्स को रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिए. This is called the test of reasonableness. Okay, so यहाँ पे कौन से क्राइटेरियाज हैं, यहाँ पे क्विकली हम देखते हैं. Firstly, nature of the right violated, पर्पस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, क्यों आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, अर्जेंसी ऑफ द थ्रेट एड्रेस्ड, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, क्या सही कर रहे हो आप रिस्ट्रिक्शन करने के लिए या आर यू वेरी टू हैवी ऑन दैट रिस्ट्रिक्शन, एंड फाइनली प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ द टाइम, इज इट रिक्वायर्ड, सच एक्ट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप, क्या कोई मिलिटेंसी का फेज चल रहा है या जस्ट unreasonably you're putting this kind of an act. तो ये कुछ यहाँ पे क्राइटेरियाज दिए गए हैं just for us to understand when does a law become restricting the fundamental rights. Okay, so यहाँ पे इस एक्टिविस्ट की बात की है because of which we got this important doctrine, okay, जो reasonable restrictions चेक करने के लिए कि क्या ये सही है कि क्या ये गलत है. Apart from that we see इनके जो वीजी राव जो है, जो लॉयर है, he was not able to fight his own case. The reason being it उनको एंटी मलेरियल ड्रग से एक इन्फेक्शन हुआ था, एक रिएक्शन होके he was not able to hear, उनका hearing का प्रॉब्लम हुआ, so he could not hear his own case, but he was involved in many such trade union cases. जैसे लिप्टन टी की बात करें, he was also took up cases like for them, right? And उनके बेटे ने भी यहाँ पे played a very important role. विजय राव के बेटे ने भी बहुत सारे केसेस के लिए भी यहाँ पे चैलेंज किया. फॉर एग्जाम्पल जैसे आधार ऑर्डिनेंस की बात करते हो, सेडिशन एक्ट, सो हाउ these activists play a very important role. They are the voice of the people, right? तो यहाँ पे यही बात कर रहा है, is the law encroaching on rights? And ये जो लेबर एक्टिविस्ट होते हैं, how they helped in Supreme Court getting a new test to check कि कोई लॉ क्या रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, हटाना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये अफेक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट भी लेके आए. सो दिस इज द होल एस्पेक्ट विद रिगार्ड टू द प्रोपोर्शनैलिटी एंड द रीजनेबलनेस टेस्ट. एंड लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू IRDAI. Okay, now what is this IRDAI? IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे एक 7 मेंबर की कमिटी बिठाई गई है, एंड द रीजन फॉर दिस इज टू रिव्यू द इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स. इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म्स को चेक करने के लिए. इनफैक्ट देयर वाज सपोज्ड टू बी एन अमेंडमेंट बिल व्हिच वाज गोइंग टू बी ब्रॉट अबाउट टेबल्ड इन द बजट सेशन, बट बिकॉज अभी रिव्यू हो रहा है, इट इज मोस्ट लाइकली कि यहाँ पे नया जो अमेंडमेंट है ये अभी नहीं होगा. तो अभी कौन क्या है एग्जैक्टली ये पैनल के बारे में देखते हैं. पैनल को चेयर किया जा रहा है फॉर्मर SBI चेयरमैन जो है दिनेश खारा. सो दिनेश खारा इज द वन हु इज हेडिंग दिस पर्टिकुलर पैनल, एंड ये जो पैनल है चेक करेगा विद रिगार्ड टू कैसे हम इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आएंगे, कैसे हम इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आएंगे. इट इज सेड कि अभी जो इंश्योरेंस सेक्टर में FDI है, इट इज अलाउइंग अबाउट 74%. जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है इस सेक्टर में अलाउ कर रहे हैं 74%. इट इज सून सेड कि ये कमिटी चेक कर रही है कि क्या इसको 100% लेके आ सकते हैं क्या. सो दिस इज सम लाइक दीस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू सी. एंड जो इंश्योरेंस एक्ट है 1938 का, ये भी हमको चेक कर रहे हैं. सो लेट्स क्विकली सी अबाउट IRDAI. जब वो रिफॉर्म्स या जो रिकमेंडेशंस देंगे तभी हम वो चेक करेंगे. अभी हम इस बॉडी के बारे में चेक करते हैं. सो ये बॉडी जो है IRDAI, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है, यानी स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है, यानी ये लॉ से बना है. तो कौन से लॉ से बना है, ये लॉ है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1999. ये बॉडी बनी थी 2000 में, और रिकमेंडेशंस था एक कमिटी का, मल्होत्रा कमिटी. 1999 में उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए अपने मल्होत्रा कमिटी ने, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव दिस पर्टिकुलर बॉडी. तो ये बॉडी का काम क्या है, बॉडी का काम है कि ओवरऑल सुपरवाइज करना एंड डेवलप करना हमारा इंश्योरेंस सेक्टर. तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो ये वेरियस इंश्योरेंस की बात करें, दिस बेसिकली ओवरलुक्स दिस पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द कंट्री.
इसका जो हेड ऑफिस है इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद। और ये जो IRDAI है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग एंड फॉर लाइसेंसिंग इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस कंपनीज, इंटरमीडियरीज जो है ब्रोकर्स होते हैं, इनका पूरा रजिस्ट्रेशन देना, राइट, रेगुलेट करना, ये सब चेक करती है। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा इस बॉडी का? इट इज प्रोटेक्टिंग द पॉलिसी होल्डर्स। जैसे आपके पेरेंट्स ने अलग अलग पॉलिसीज लिया होगा, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, लिया होगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट इनको प्रोटेक्ट करना क्या, ताकि इनके साथ गलत ना हो, है ना, जो भी रेगुलेशंस है प्रॉपर्ली रेगुलेटेड हो ये मार्केट। दैट इज व्हाई यू हैव दिस इंपॉर्टेंट बॉडी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेट करती है, क्वालिफिकेशंस देती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ओके फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंसेस। अगर लाइसेंसेस चाहिए तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या क्या स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, तो ही आप एक इंश्योरेंस कंपनी खड़ी कर सकते हो, तो ही आप ब्रोकर बन सकते हो। सो ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द IRDAI। सो ओके, सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है विद रिगार्ड टू MPID एक्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एक्ट ऑल अबाउट। तो ये महाराष्ट्र का एक्ट है, बट ये एक्ट पढ़ने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट अ केस कॉल्ड एज टॉरस केस। ठीक है, टॉरस केस क्या है? ये केस है जहां पे 1000 करोड़ का घोटाला हुआ था। यहाँ पे लोगों के पैसे लिए गए थे, 3700 इन्वेस्टर्स के पैसे यहाँ पे हड़प लिए हैं एंड फरार। ठीक है, ये जो कंपनी है बंद। सो दिस हैज लेड टू अ स्कैम, राइट। इस स्कैम को बोलते हैं पॉन्जी स्कीम। इसको क्या बोलते हैं? पॉन्जी स्कीम। So basically we're going to understand about what is a Ponzi scheme first. Ponzi scheme का मतलब है a fraudulent investment scheme. A fraudulent investment scheme. जैसे आपने एक मूवी देखी है हेरा फेरी, उसमें यहाँ पे भी ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट होता है जहां पे परेश रावल एंड अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी, राइट, दे लूज देयर मनी आउट, राइट। सो सिमिलर टू दिस पॉन्जी स्कीम इज आल्सो दैट, जहां पे अगर आप मान लेते हो कि इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में, सो X पर्सन इन्वेस्ट इन द कंपनी और उसको बोल दिया जाता है कि आपको बहुत बड़ा सा रिटर्न देंगे, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देंगे, है ना। बैंक अगर आपको 10% देगी, हम आपको 50% रिटर्न देंगे। सो इन्वेस्टर इज वेरी हैप्पी। इन्वेस्टर को लगेगा अरे मुझे बहुत पैसे रिटर्न में आएंगे, मैं 100 रुपए दूंगा, मुझे 1000 रुपए आएंगे। सो देन द पर्सन इज ल्यूर्ड एंड ही इन्वेस्ट इन सच अ स्कीम। Now what will happen is starting में तो देते हैं, starting में they give that money, they are able to pay back the money to X, reason being क्योंकि नए नए जैसे इन्वेस्टर्स लेके आते हैं, जैसे कि Y भी इन्वेस्ट कर रहा है, अभी बैंक इस कंपनी के पास कुछ पैसे होंगे तो वो X को रिटर्न कर सकता है, राइट। बट अगर कोई नया इन्वेस्टर आता नहीं है, अगर कोई दूसरा आदमी इन्वेस्ट ही नहीं करता है, then how are they going to pay the X, राइट, तो उसके पैसे अटक गए। तो यही होता है पॉन्जी स्कीम, द फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम, जहां पे दे आर नॉट एबल टू पे बैक देयर इन्वेस्टर्स एंड देयरफॉर इट फेल्स। तो अभी हम देखते हैं सेंटर हैज अ वेरियस लॉस टू काउंटर दिस पॉन्जी स्कीम। पॉन्जीज जो है इट इज ऑफ कोर्स बैंड इन इंडिया। सो जैसे कि अगर हम देखते हैं The Price Cheat and Money Circulation Banning Act 1978, ये प्रोहिबिट करता है प्रमोटिंग पार्टिसिपेटिंग इन दिस मनी सर्कुलेशन स्कीम की, यू नो, बहुत सारे चिट फंड्स होते हैं साथ में आते हैं, ऑल ऑफ दैट इज नॉट अलाउड इन इंडिया। फर्दर अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स यहाँ पे बैन किया जाता है, ऐसे स्कीम्स को, इसको पॉन्जी स्कीम्स कहते हैं, तो ऐसे स्कीम्स को बैन किया जा रहा है। तो सेंट्रल लॉज हैं, वैसे बहुत सारे स्टेट लॉज भी, जैसे कि महाराष्ट्र, इवन तमिलनाडु हैज इट। तो महाराष्ट्र का एक एक्ट है MPID, विच इज महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, 1999 में ये हुआ था। बट अगर आप सोचोगे ऑलरेडी तो सेंट्रल लॉज हैं, तो स्टेट लॉज की क्या आवश्यकता है, राइट। सेंट्रल लॉज तो है ना, तो वापस से स्टेट लॉज क्यों? नाउ द नीड फॉर द लॉ केम बिकॉज यहाँ पे, बिकॉज मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल, राइट, तो यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट सेटअप हुए थे, बहुत सारे ऐसे कंपनीज आए थे। एंड स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हो 1990s वाज द ईयर ऑफ फुल ऑफ स्कैम्स, बहुत सारे स्कैम्स हुए थे। तो जो मिडिल क्लास का पैसा है अटक गया था, लॉसेस हो रहे थे, एंड दैट इज व्हाई महाराष्ट्र स्टेट वाज ऑफ द ओपिनियन कि यहाँ पे सेपरेट एक एक्ट होना चाहिए, ताकि तुरंत से तुरंत यहाँ पे कार्रवाई करके वी आर एबल टू पे बैक एटलीस्ट सम पार्ट टू द इन्वेस्टर्स जिनके साथ यहाँ पे लॉस हुआ है।
So therefore they created this particular act. राइट सो यहाँ पे 1999 में ये एक्ट आया था टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स फ्रॉम दीज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट्स दैट कलेक्ट द डिपॉजिट्स विद फॉल्स प्रॉमिस कि हम आपको हाई रिटर्न देंगे एंड देन डिफॉल्ट ऑन पेमेंट्स, उसके बाद पैसे ही नहीं देते, गायब हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में से हम देखते हैं कि पनिशमेंट है कि 6 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट है एंड देयर इज अ फाइन ऑल्सो अप टू 1 lakh rupees। सो टॉरस में रिसेंटली यहाँ पे जनवरी में हम देखते हैं ऐसा ही कुछ स्कैम हुआ था जहां पे पैसे लेके भाग गए थे, राइट तो इसमें अभी हम देखते हैं दिस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, दिस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर दे हैव बीन एबल टू सीज जो अभी ओनर्स थे इस पर्टिकुलर टॉरस केस के, उनके जो भी सीज्ड प्रॉपर्टीज है अभी इसका नीलामी किया जा रहा है, ऑक्शन किया जा रहा है और दे आर एबल टू गेट अप एटलीस्ट अबाउट 40 crores फ्रॉम दिस, दे आर एबल टू एटलीस्ट गेट 40 crores फ्रॉम दिस। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर स्कीम हैज कम इन एंड दिस इज द केस दैट हैपेंड इन टॉरस व्हिच इज ये दादर में हुआ था, मुंबई में हुआ था। सो दैट्स ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज आर्टिकल। आई होप you have understood these major news articles. Don't forget to watch the next video where I'll be discussing 20 GK questions based on this current affairs. Thank you so much for watching.